Namaste Gurukulians, hope you are doing well at home and revising the topics properly through videos as well as through notes. So today, in extension of our previous lectures, I am going to start sixth video, that is part 6 of chapter 5, that is Principles of Inheritance and Variation of class 12th Biology. So this is the sixth video of same chapter, and in earlier 5 videos you can go through if you have any doubt. Now we are going to start a new topic of this chapter, that is pedigree analysis. This is as per definition, this is the study of inheritance of genetic traits in several generations of human beings in the form of a family tree. दिस इज़ कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस. मतलब कि ह्यूमन बींग्स के अंदर हम कभी भी क्रॉस जो है वो डायरेक्ट नहीं करवाते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में, ठीक है. सो हमारी पूरी प्रोजनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन के अंदर किस डिजीज़ की चांसेस कितने हैं अकरेंस के, ये हम पता कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से. So these are some symbols which are being used in making a pedigree chart or pedigree tree. So family tree, or we can say it pedigree tree. So first of all we are going to conclude these. This is the symbol of male, circle is of female, this is of sex unspecified, जहाँ पे हमें पता नहीं है. So this is unspecified sex, means when we are unable to say that whether it is a male or female. And if these symbols are shaded or dark, then we will consider it as affected individuals, means इन individuals के अंदर कोई ना कोई genetic disorder है, इसके अंदर नहीं है. These are normals and these are affected. Now this line between a male and female is showing mating or cross, means sexual reproduction between two organisms, a male and female in human being. And when it is of double line, this means mating between close relatives. So this is generally not allowed in human beings, because mating in close relative, we can say the cross or fertilization between a brother and sister. So this is unethical in human beings. So we are not going to study this, and you will not find any family tree or pedigree chart of this type. Now the next one is, this is male female mating हुई. Now this is the next generation. The next generation is one female and one male, means इन दो पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है. सो दिस इज पेरेंट्स अबोव, ऊपर पेरेंट्स दिखाए हमने, नीचे चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, L and R शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने. तो इसकी सबसे पहले लड़की हुई, उसके बाद लड़का हुआ. सो ये ऑर्डर में होता है, ठीक है. अगर यहाँ पे हम 4 दिखाते हैं टोटल, तो out of these 4, this will be considered as first baby and this will be second and likewise. And if there is any number mentioned within the circle or rectangle, rectangle is square, तो अगर उसके बीच में कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है दिस इज स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इट इज मेल और फीमेल. चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर जितना भी नंबर लिखा होगा, दिस इज डिनोटिंग टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. और ये हमने शेडेड नहीं किया है, तो हम इसको बोल सकते हैं अनअफेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे भी ये नॉर्मल था. सो नॉर्मल या अनअफेक्टेड. सो दीज आर 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स. तो ये हम कब लगाते हैं, जैसे मान लो हमने इस पेरेंट्स का क्रॉस करवाया, इससे 5 बच्चे हुए, 5 में से 3 मेल हैं, तो हम 3 मेल ना दिखा के यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख दें. एक बार बॉक्स बनाया, उसके अंदर 3 लिख दिया, मतलब देयर विल बी 3 मेल फ्रॉम दिस पेरेंट. नाउ द नेक्स्ट सिंबल इज, either we can represent it by having a dot
between the circle, or we can shade half of the circle, or we can make a cross within the circle. This will denote carrier. ये वाला सिंबल आपको बहुत कम मिलेगा बुक्स के अंदर. ये एक दो जो हायर बुक्स हैं आपकी, हेल्प बुक दिनेश में या फिर एलिमेंट्री, उसके अंदर दिया होता है. एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दी हुई है, ठीक है. और जो आपके जितने भी आपके पेडिग्री चार्ट मिलेंगे उसमें भी आपको ये वाला सिंबल नहीं मिलेगा. मोस्टली जो कैरियर होता है, कैरियर को हम यहाँ पे ऐसे डिनोट करते ही नहीं है. नेक्स्ट इज, अगर हमने इस सर्कल को सर्कल को या फिर स्क्वायर को अगर हमने क्रॉस कर दिया, मतलब डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, कि मान लो जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे इन दो के दो बच्चे हुए, इसमें से जो फीमेल थी उसको मैं अगर ऐसे कर दूं तो मतलब इसकी डेथ हो गई है. दो बच्चे हुए थे, दो में से एक जिंदा है, एक जो लड़की थी वो मर चुकी है. सो डेथ. और वो डेथ किस वजह से हो सकती है? जब भी हम पेडिग्री में स्टडी करेंगे हम नेचुरल डेथ की बात नहीं करते. डेथ ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिजीज. नाउ दिस इज आइडेंटिकल ट्विन. दो बॉक्सेस हैं हमारे पास, ऊपर पेरेंट होंगे, पेरेंट से ये आए दो, ठीक है. तो दो बॉक्सेस अगर सेम टाइप के हैं, दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिकल ट्विन्स. सो ईदर द आइडेंटिकल ट्विन्स आर ऑफ बोथ मेल और बोथ फीमेल. मतलब हम ऐसे भी कर सकते थे, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे. ऐसा क्यों? बिकॉज आइडेंटिकल ट्विन्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द फर्स्ट क्लीवेज. मतलब जैसे मान लो हमने बोल दिया कि स्पर्म फ्रॉम फादर एंड एग फ्रॉम मदर, दोनों फ्यूज हुए, जाइगोट बनाया. जैसा आपने आपके थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. सो जब ये जाइगोट बनता है तो इसका आगे जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसके अंदर फर्स्ट क्लीवेज जो होगा, फर्स्ट क्लीवेज, तो उसमें जाइगोट में एक सेल से दो सेल बनेंगी ऐसे. तो ये वाली जो सेल है इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस वन इंडिविजुअल एंड इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस वन इंडिविजुअल. सो ईदर दे विल बी ऑफ बोथ मेल और फीमेल. क्यों? क्योंकि इसका जो सेक्स था वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है यहाँ पे स्पर्म और एग के फ्यूजन के टाइम पे. तो आइडेंटिकल ट्विन्स हरदम एक ही जाइगोट से बनेंगे, एक ही एग यूज होगा उसके अंदर, और दोनों का सेक्स जो होगा दैट विल बी सेम, या तो मेल या फीमेल. सो दीज आर आइडेंटिकल ट्विन्स. देयर इज अनदर टर्म विच इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस, that is called as dizygotic twins. नाम से पता चल रहा है, डाई मतलब दो, जाइगोटिक मीन्स दो जाइगोट यूज होंगे. और दो जाइगोट कब यूज होंगे? जब दो एग निकले होंगे मदर से. सो यहाँ पे क्या होगा? एक स्पर्म है, मदर से निकले दो एग, वन एग फ्रॉम बोथ ओवरी. It may happen, or the ovary may be stimulated to produce multiple number of eggs through the injection of FSH hormone, follicle stimulating hormone. ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा आपका थर्ड और फोर्थ चैप्टर में. सो जब स्पर्म्स तो हमारे पास वैसे ही मिलियंस में होते हैं, तो व्हेन दिस स्पर्म विल फ्यूज विद दिस टू एग्स, तो दोनों के दोनों एग ने क्या बनाया? जाइगोट. इसने भी क्या बनाया? जाइगोट. ठीक है. पर इस एग के साथ कौन सा स्पर्म फ्यूज हुआ और इस एग के साथ कौन सा स्पर्म फ्यूज हुआ, दैट विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. तो क्या पता यहाँ पे ये स्पर्म जो है जिसके साथ ये फ्यूज हुआ, इसने यहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस कर दिया, नहीं मेल प्रोड्यूस कर दिया, इसने फीमेल प्रोड्यूस कर दिया. मतलब चांस की बात है, या तो वो दोनों मेल हो सकते हैं, या दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं. जैसे हमने सुना होगा कि कई पेरेंट्स के जो दो बच्चे होते हैं दोनों ट्विन्स हैं, पर एक मेल है और एक फीमेल है. सो वो जो कंडीशन होगी वो कैसे होगी? व्हेन देयर विल बी
2 eggs and they will fuse with 2 sperms to produce 2 zygote which will further develop into 2 individuals. They may be of same sex or different sex. So these were some symbols. Now we will try some pedigree chart. For this I am referring a book. Now I am going to draw a chart, pedigree chart. So the question is, identify whether the trait is sex linked or autosomal. So this is the given pedigree. The question will be whether this trait is autosomal or sex linked. अब हमने इसको देखना कैसे, सबसे पहले हम सिंबल्स मैच करते जाएंगे. दिस सिंबल वाज फॉर फीमेल, दिस वाज फॉर मेल. यहाँ से देखें आप, मेल फीमेल, सर्कल फीमेल एंड स्क्वायर इज फॉर मेल. सो ये पेरेंट्स थे, इनके बीच में मेटिंग हुई. ये वाला सिंबल देखो, मेटिंग और क्रॉस. इससे इनके 4 बच्चे पैदा हुए. ठीक है, दिस इज फीमेल, मेल, मेल एंड फीमेल. दिस इज द ऑर्डर ऑफ चाइल्ड बर्थ. मतलब सबसे पहले फीमेल हुई, फिर उसके बाद मेल, फिर मेल और लास्ट में फिर फीमेल हुई, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ दिस फीमेल इज मेटेड विद अनदर मेल. मतलब इस लड़की की शादी हुई किसी और मेल से और उससे इसके 2 बच्चे पैदा हुए. वन इज फीमेल, वन इज मेल. बट हेयर वी कैन इजीली डिटेक्ट दैट सम ऑफ द सर्कल्स और squares are shaded, means these are affected organisms. They are affected with some genetic trait, but we have to conclude, we have to detect whether this genetic trait or disease is autosomal or sex linked. तो सबसे पहले आपने देखना है, जब भी सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होंगे, चलो अब इसमें एक चीज़ पूछी नहीं है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर होगा या रिसेसिव. देयर आर 4 ऑप्शंस कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है. अब देखो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है. डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है, डोमिनेंट ऑटोसोमल भी हो सकता है, रिसेसिव ऑटोसोमल भी हो सकता है और रिसेसिव सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है. सो हमारे पास टोटल 4 टाइप की ऑप्शन बनेंगी. वेदर ए डिजीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, और
इट मे बी सेक्स लिंक्ड ऑटोजोम, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो डोमिनेंट और रिसेसिव है या नहीं है, इसका बहुत ही इजी सॉल्यूशन है कि अगर किसी एक भी फादर के अंदर या मदर के अंदर कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन वाले ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडिविजुअल जो हैं वो अफेक्टेड होंगे। तो उस चीज़ से पता चलेगा कि दिस जेनेटिक ट्रेट और डिजीज़ इज़ डोमिनेंट। पर अगर सारे इंडिविजुअल्स नहीं हैं, उसमें से एक या दो हैं, तो पता चल गया कि वो रिसेसिव है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है। सेकंड वन इज ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है, ये कैसे पता चलेगा? तो आपने इस पेडिग्री को ध्यान से देखना है और ये देखना है कि इसके अंदर, मैं ये चीज़ रब कर देता हूँ सिंबल्स, तो सेक्स लिंक्ड जब भी होगा, दैट पेडिग्री चार्ट विल फॉलो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये क्या है क्रिस क्रॉस? मतलब एक फादर जो है वो हरदम अपनी डॉटर को डिजीज को दे सकता है, आगे कन्वे कर सकता है, एंड फ्रॉम डॉटर इट विल ऑलवेज कैरी टू हिज सन अगर अफेक्टेड है फादर। और अगर मदर अफेक्टेड है देन मदर विल ऑलवेज गिव इट्स डिजीज टू हिज सन एंड फ्रॉम सन टू हिज डॉटर। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मेल से फीमेल में जा रही है और फीमेल से फिर नेक्स्ट जनरेशन में मेल में जा रही है। सेम यहाँ पे फीमेल से नेक्स्ट जनरेशन में मेल में गई और इस मेल से नेक्स्ट जनरेशन की फीमेल में गई। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो ये कि डोमिनेंट है रिसेसिव है, दिस इज रिसेसिव। क्यों? डोमिनेंट अगर होता तो ये सारे इंडिविजुअल्स जो हैं नेक्स्ट जनरेशन के वो सारे अफेक्टेड होते। तो अब देखते हैं कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड कब मैंने बता दिया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा। सो इस इनहेरिटेंस के अंदर देखो आप कि ये फादर है, फादर से इसकी डॉटर के अंदर गई है डिजीज, और डॉटर से शादी हुई उसके बाद उस डॉटर की, तो उसके सन के अंदर गया, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बन गया। फादर से डॉटर में, डॉटर से सन में, तो इसका मतलब क्या है? दिस विल बी ए सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अगर ये चीज़ नहीं मिलती है आपको तो वो बच गया आपका ऑटोसोमल। तो आंसर क्या होगा? दिस विल बी ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सो जब भी हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, मतलब ऐसे डिसऑर्डर्स जो जनरली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं वो बहुत कम डिजीज हैं। होलेंड्रिक जीन्स बोलते हैं जनरली हम, द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब किसी भी फैमिली का अगर हम ये वाला ट्री देखें, उसकी फैमिली हिस्ट्री बना के देखें, तो हमें इजीली पता चल सकता है कि ये ट्रेट अगर इसके फादर में था तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाने के कितने चांसेस हैं। तो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर किस जनरेशन के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके अपीयरेंस की, हम ये चीज़ इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसी की वजह से हम ये भी बता सकते हैं कि क्लोज रिलेटिव्स जो हैं उसके बीच में शादियां कम करवानी चाहिए। ये हमारे माइथोलॉजिकल फैक्ट भी है, हमारे धर्म ग्रंथ भी बोलते हैं कि भाई क्लोज रिलेटिव्स के बीच में शादियां नहीं, सेम गोत्र में शादियां नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पे उस ट्रेट की अपीयरेंस ज़्यादा है। तो अगर उस कम्युनिटी से बाहर जाके वो शादी करेगी लड़की या लड़का, तो क्या होगा? देयर में बी चांस दैट
दैट रिसेसिव डिसऑर्डर मे नॉट अपीयर। डोमिनेंट हरदम अपीयर करेगा, रिसेसिव कब अपीयर करेगा? जब वो डबल रिसेसिव फॉर्म में होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ हम आगे भी देखेंगे क्रॉसेस। फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। तो सबसे पहला यही है, हेल्प इन जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग मतलब कि किसी पेरेंट को ये लगता है कि भाई ये वाली डिजीज़ हमारे फादर में भी थी, हमारे फोर फादर में भी थी, देन व्हाट कुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस डिजीज़ इन माय नेक्स्ट जनरेशन। तो उस टाइप की काउंसलिंग जो है वो डॉक्टर्स करेंगे और प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि वो आपको हो सकती है कि नहीं हो सकती, बट ये किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली पेडिग्री ट्री। सेकेंड, they will also help in finding origin of genetic disorder, कि किस जनरेशन में वो स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं? मेनली ट्रेसिंग कर रहे हैं। सो ट्रेसिंग में फैमिली हिस्ट्री देखते जाएंगे, उस ट्रेसिंग में हमें पता चल जाएगा कि ये कब इसका ओरिजिन हुआ था। थर्ड, डिसएडवांटेज ऑफ मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। ये बात भी मैंने कर दी डिस्कस, क्योंकि क्लोज रिलेटिव्स में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी फॉर द अकरेंस ऑफ दैट डिजीज़। इसलिए हम अपने गोत्र से बाहर जाके शादियां करते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोल क्रॉसेस कांट बी मेड। in humans. Control crosses means this will be unethical in human beings to cross between a brother and a sister. So this is not allowed, this is unethical. तो उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल क्रॉसेस ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल ही नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पेडिग्री चार्ट के थ्रू ही देख सकते हैं कि भाई उसके अंदर वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। सो कंट्रोल क्रॉसेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एंड so this is all about extensively used in medical research. Last point, used in medical research. So you can practice different type of pedigree chart which are available in various health books. So by doing those crosses you will find easy to solve a pedigree chart and to detect whether a particular disease or particular genetic trait is autosomal or sex linked या dominant या recessive. So this topic is complete. Now we will start with second topic. So next topic is Mendelian disorders. So Mendelian disorders are the disorders which are caused due to alteration or mutation in gene. सो अल्ट्रेशन मतलब चेंज, अल्ट्रेशन या म्यूटेशन एक ही बात है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन आर द सडन इनहेरिटेबल चेंजेस। इनहेरिटेबल चेंजेस आर दो चेंजेस विच कैन बी पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। सो
जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन मे बी ऑफ द कॉज ऑफ म्यूटेशन मे बी इंसर्जन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, इन्वर्जन एक्सेट्रा। बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि सबसे पहले तो जीन क्या होता है। जीन है एनी स्ट्रेच ऑफ डीएनए। मान लो ये हमने एक डीएनए लिख लिया ATGCGAT। अब ये डीएनए है तो ये डबल स्ट्रैंडेड होगा, जैसे हमने 9th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो इसके अगेंस्ट ए के साथ हरदम पेयरिंग टी की होती है, जी के साथ हरदम पेयरिंग सी की होती है, ए और टी डबल बॉन्ड के साथ, जी और सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये आपका 11th क्लास से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो ये मैंने एक डीएनए लिख दिया डबल स्ट्रैंडेड। अब इस डीएनए, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो इन दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा। ये टेम्पलेट होती क्या है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा, डिटेल में बताऊंगा मैं। तो उससे जो एमआरएनए बना, ये एमआरएनए बन गया आपका। और इस एमआरएनए के अंदर अब जैसे मान लो हमने दिस इज टेम्पलेट, तो जो टेम्पलेट होगा वो जस्ट उसके अपोजिट एमआरएनए की सीक्वेंस बनती है। टी के अगेंस्ट ए के अगेंस्ट यू। अब देखो ए के अगेंस्ट टी आना चाहिए था, पर आरएनए के अंदर यू होता है इंस्टेड ऑफ टी, थाइमिन। थाइमिन की बजाय यूरेसिल। तो ये आप 9th क्लास से रिकॉल करोगे ये चीज़ें, जी सी जी ए यू। हमने इस वाले जो स्ट्रैंड था डीएनए का, इसके अगेंस्ट एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाया है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्रिटी रूल हमें पता है, चारगाफ रूल, ए का टी के साथ और जी का सी के साथ। यहाँ पे टी आ नहीं सकता, टी की बजाय हमें लिखना है यू, यूरेसिल। सो ये स्टैंड हो गया आपका टेम्पलेट स्टैंड। जिस स्टैंड के अगेंस्ट ये बना है दिस इज एमआरएनए, उसके अपोजिट जो स्टैंड है डीएनए का, टेम्पलेट के अपोजिट जो स्टैंड है, इसको बोलते हैं हम नॉन टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड। तो आप देखोगे द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एमआरएनए। ये और ये बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट टी, टी की बजाय यहाँ पे यू है। देखो ए टी की जगह यू, जी जी सी सी जी जी ए टी की जगह पे यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 लेटर बनते हैं आपके, जो भी एमआरएनए के आगे सीक्वेंस होगी, अब इस 3 लेटर की वजह से एक अमाइनो एसिड बनेगा। मान लो वो बनाया हमारा ग्लाइसिन। सो दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड। इसकी वजह से एक दूसरा अमाइनो एसिड बनेगा, दैट विल बी सेकंड अमाइनो एसिड। ऐसे ही आगे फॉरवर्ड 3 लेटर के सेट से एक अमाइनो एसिड बनेगा, और इस 3 लेटर के सेट को हम बोलते हैं कोडोन, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई म्यूटेशन किस वजह से होगी, कि अगर हमने यहाँ पे एक भी लेटर को चेंज कर दिया। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने नया लेटर को इंसर्ट करवा दिया, जी और सी के बीच में ए इंसर्ट करवा दिया। तो जब ए इंसर्ट करवाया तो क्या हो गया, सीक्वेंस चेंज होगी, और ये जब सीक्वेंस चेंज होगी तो उससे एमआरएनए भी डिफरेंट बनेगा। तो हमने मान लिया था यहाँ पे ए, और ए के अगेंस्ट यहाँ पे टी भी आएगा। अब टी के अगेंस्ट ये बना था, तो यहाँ पे ए आ गया। अब देखो पहले बन रहा था हमारा कोडोन AUG। हर 3 लेटर जो है वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को बनाते हैं। नेक्स्ट सेट था हमारा CGA, इसने एक डिफरेंट टाइप का अमाइनो एसिड बनाया। पर अब हमने क्या किया, इसके अंदर ए इंसर्ट करवा दिया।
ए इंसर्ट करने से क्या होगा, आवर न्यू कोडॉन विल बी ACG, नेक्स्ट विल बी AU, फॉरवर्ड ऐसे होता रहेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे 3 लेटर का सेट चेंज होगा, कोडॉन चेंज होगा, तो उसकी वजह से अमीनो एसिड भी चेंज होगा। तो दिस इज इंसर्जन की अगर कोई हमने इंसर्ट किया तो हमारा प्रोटीन कुछ अलग बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दीज आर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की वजह से क्या बन रहा है, प्रोटीन। तो चाहे इंसर्ट करा लो, चाहे यहाँ से कोई चीज़ डिलीट करा लो, तब भी हमारे कोडॉन चेंज हो जाएंगे। कोडॉन चेंज हुआ तो फिर प्रोटीन भी चेंज होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पे G था, इस G की बजाय हमने यहाँ पे लिख दिया T, तो T के अगेंस्ट यहाँ पे क्या आएगा, A। अब यहाँ पे A है तो यहाँ पे क्या आएगा, T, फिर दोबारा कोडॉन चेंज हो गया। मतलब जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ATGC, इसके अंदर कुछ भी चेंज आने से हमारा जो प्रोटीन चेंज हो रहा है, दिस इज म्यूटेशन, चेंज इन DNA सीक्वेंस। यहाँ से यहाँ तक DNA की सीक्वेंस को हम मान रहे हैं एक जीन एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जीन हो सकते हैं DNA के अंदर, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल हैं 30,000 जीन्स, ठीक है बेटा। सो वी आर डूइंग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं, म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन क्या होती है, वो इन तरीकों से हो सकती है, और ये तरीके क्या हैं वो मैंने यहाँ आके आपको समझा दिया है, ठीक है। तब वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें हमने। So Mendelian disorders are divided into 2 categories, autosomal and sex linked. In autosomal Mendelian disorders we are going to study sickle cell anemia, phenylketonuria, and third one is thalassemia, THALASSEMIA, thalassemia. In sex linked we have 2 diseases in our syllabus. One is hemophilia and second one is color blindness. So these 5 Mendelian disorders we are going to study. These are included in your syllabus, and we are studying it one by one. So first of all we will study sickle cell anemia. So this is first autosomal disorder, sickle cell anemia. First autosomal Mendelian disorder. First of all, we will write first point. This is autosomal recessive disorder. अब जो हमने सेक्स लिंक्ड किया था या ऑटोजोमल किया था, वो या तो डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकता है। डोमिनेंट वाली आपकी कोई डिजीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ रिसेसिव वाली हैं, तो आपने ये चीज़ तो भूल ही जाना कि डोमिनेंट भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि डोमिनेंट डिजीज़ अगर कोई होती है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगी ही होगी, 100% श्योर है। बट अगर वो रिसेसिव है तो डिपेंड करता है कि वो उसका जीनोटाइप
क्या है उसके बेसिस पे। सो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होगा, एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है HB मॉलिक्यूल, शॉर्ट फॉर्म इज HB। HB के अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, ठीक है। तो टोटल 4 चेन्स होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स। तो 4 प्रोटीन की चेन होती है, 2 अल्फा वाली और 2 बीटा वाली। तो हम कह रहे हैं इसके अंदर बीटा चेन जो होगी उसकी अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी। वो एबनॉर्मलिटी क्या होगी कि जो इसका बीटा ग्लोबिन था उसके अंदर टोटल, जैसे मान लो दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन पे नॉर्मल वाले उसके अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसमें होती है आपकी ग्लूटामिक एसिड। सिक्स्थ अमाइनो एसिड, दिस इज अमाइनो एसिड। अब ये 6 अमाइनो एसिड बने हैं तो वो किसकी वजह से बने होंगे, mRNA के अंदर 6 कोडोन से। तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं कोडोन 1, कोडोन 2, कोडोन 3, C लिख रहा हूं मैं सिर्फ, कोडोन 4, कोडोन 5, कोडोन 6, ऐसे ही कोडोन 7। तो जो 6 नंबर का कोडोन था उसका वो जो अमाइनो एसिड बना है वो किसकी वजह से बनता होगा, mRNA के अंदर जो कोडोन है उसकी वजह से। तो 6th नंबर पे जो आपका कोडोन था वो था आपका GAG, ये था वो आपका कोडोन जिसकी वजह से एक अमाइनो एसिड बनना था, अभी हमने पहले किया था। तो ये है नॉर्मल में। तो नॉर्मल की बजाय अब क्या हो गया, GUG हो गया, ठीक है। अब कोडोन चेंज हो गया सिर्फ 6th नंबर वाला, बाकी सारे ठीक हैं, सेम टू सेम है। यहां पे म्यूटेशन हुई, दिस A की बजाय यहां पे आ गया U। सो GAG विल बी रिप्लेस्ड बाय GUG। और इसकी वजह से अब कौन सा अमाइनो एसिड बना, ग्लूटामिक एसिड की बजाय यहां पे बन गया वेलिन। सो एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन मतलब म्यूटेशन at 6th codon to form valine instead of glutamic acid। अब देखो ये हमने क्या लिखा था, ये तो mRNA था, कोडोन तो mRNA में होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स हैं आपके। तो इसके अगेंस्ट अगर DNA हम बात करें, नीट में कई बार ये पूछ लेता कि चेंज जीन के अंदर क्या चेंज था। तो जब जीन के अंदर चेंज दिखाना है तो आपने क्या दिखाना है, दैट T विल बी रिप्लेस्ड बाय A। मतलब यहां पे क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन हुई, और उस जीन के अंदर जो चेंज हुआ उसकी वजह से ये mRNA के अंदर कोडोन चेंज हो गया। तो पहले ये था तो ये बन रहा था, ये चेंज हुआ तो उसकी वजह से ये भी चेंज हो गया, इसकी वजह से ये भी चेंज हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर विच विल बी कॉज्ड ड्यू टू ए म्यूटेशन एट 6th अमाइनो एसिड, codon of 6th amino acid which will form valine amino acid rather than glutamic acid। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक क्वेश्चन करते देखते हैं। तो इसके अंदर पहले तो मैं
रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ HbA, दिस इज फॉर नॉर्मल। HbS मतलब ऐसा पेशेंट जिसका हीमोग्लोबिन सिकल सेल हो चुका है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया के एक्चुअली अंदर क्या होगा, जब वो वेलिन बन जाता है बीटा ग्लोबिन चेन, तो उसकी वजह से जो शेप ऑफ आरबीसी है, शेप ऑफ आरबीसी दैट टर्न फ्रॉम बाइकनकेव टू सिकल शेप आरबीसी, ठीक है। बाइकनकेव हो गया आपका, बाहर से देखेंगे तो ऐसा, अगर साइड व्यू देखेंगे तो ऐसी डंबल शेप, बाइकनकेव और डंबल शेप। सिकल शेप में हो जाएगा आपका ऐसी। सिकल शेप। तो जब ये सिकल शेप हो जाएगी तो क्या होगा, जो ब्लड फ्लो कर रहा है आपका आर्टरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, वहाँ पे जाके ये स्टक कर जाएगी। तो जब स्टक करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन लेके जाना। तो जब ऑक्सीजन जाएगी नहीं प्रॉपर टिश्यूज तक तो आपको एनीमिया फील होगा। सो इन दिस केस HbA इज नॉर्मल, HbS हम म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, सिकल सेल एनीमिक। तो किसी भी पर्सन के अंदर, हमने पहले भी बात करी थी प्लांट वाले केस में कि 2 एलील दिखाते हैं हम, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, इफ आई विल से HbAA, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, 2 एलील दिखाने हैं, तो ऐसा पर्सन होगा हरदम नॉर्मल। अगर मैं लिख दूं HbS और HbA, तो एक तो आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो गया, दूसरा आपका सिकल सेल एनीमिया वाला एलील आ गया। तो ऐसे वाला पर्सन हरदम कैरियर कहलाएगा। मतलब इसके, ये खुद सिकल सेल एनीमिया नहीं है इसको, पर ये आगे किसी और को डिजीज कॉज कर सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे इस डिजीज को क्या बोला था, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सो रिसेसिव डिसऑर्डर कौन से होंगे, जब आपकी दिस इज अफेक्टेड पर्सन, मतलब जब दोनों एलील सिकल सेल एनीमिया वाले होंगे, सिर्फ उसी कंडीशन में, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा, तभी कोई पर्सन डिजीज, तभी उस पर्सन को डिजीज हो सकती है। अगर उसमें से एक भी नहीं है, एक नॉर्मल वाला है और एक सिकल सेल एनीमिया वाला है, तो वो कैरियर कहलाएगा। ये नॉर्मल दिखता है पर आगे जीन फॉरवर्ड कर सकता है और आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में कोज बन सकता है, ये एक रीजन बन सकता है सिकल सेल एनीमिया होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक जनरल सिचुएशन लगा के दिखाता हूँ कि अगर कोई फादर है, वो देखने में नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल हम बोल रहे हैं, तो वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर हम कंडीशन लें सेकंड वाली, कैरियर वाली, तो HbS HbA, यहाँ पे मदर भी हमने सेम ली, कैरियर HbS HbA। अब यहाँ से जो आपके गैमीट बनेंगे, एक तो ये हो गया, एक ये गैमीट हो गया, हम डायरेक्टली यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाते हैं ऐसे, तीसरा ये, चौथा ये। सो HbS HbS, सेकेंड कॉम्बिनेशन HbS HbA, थर्ड HbS HbA, एंड फोर्थ इज HbA HbA।
अब ये देखो कि दोनों फादर और मदर दोनों नॉर्मल थे। नॉर्मल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको डिजीज नहीं है, बट दे हैव ए एलील विच कैन कॉज सिकल सेल एनीमिया इन नेक्स्ट जनरेशन। तो वो जब कॉम्बिनेशन बने, नेक्स्ट जनरेशन हुई, तो उसमें देख लो ये आ गया, दिस इज अफेक्टेड पर्सन। ये दोनों क्या होंगे? दोबारा से कैरियर, क्योंकि एक जीन नॉर्मल है और दूसरा आपका सिकल सेल एनीमिया वाला है, और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल होगा। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई दोनों फादर और मदर नॉर्मल हैं, पर उसका एक कोई जो ऑफस्प्रिंग था वो सिकल सेल एनीमिक है, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ जीनोटाइप ऑफ फादर एंड मदर। तो हम उसमें जब उसने क्वेश्चन में सिर्फ आपको नॉर्मल लिखा है, तो आपने खुद दिमाग लगाना है कि हम यहाँ पे HbA अगर होता दोनों, तो ये पॉसिबिलिटी बनती यहाँ पे अफेक्टेड होने की? नहीं बनती। तो एटलीस्ट एक एलील यहाँ से और एक यहाँ से जब दोनों साइड से आएंगे, तभी एक नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाके अफेक्टेड सिकल सेल एनीमिक पर्सन जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट डिजीज, हमने तो टोटल 3 डिजीज का नाम लिया था ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में। So second disease we are going to cover phenylketonuria. Again, this is autosomal recessive disorder. तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसको हम बोलते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब ये एक ऐसा पर्सन होगा जिसके अंदर बाय बर्थ मेटाबॉलिज्म में एक एरर है, और वो एरर क्यों है? क्योंकि उसके पास एक एंजाइम नहीं बनता। और वो एंजाइम क्यों नहीं बना? क्योंकि उस एंजाइम को बनाने के लिए जो जीन था उसके अंदर म्यूटेशन आ गई, चेंजेस आ गए। तो इस डिजीज़ के अंदर भी अगर हमने उसकी डिमार्केशन करनी हो तो कैसे हो सकता है? ऑटोसोमल फिनाइलकेटोन्यूरिया को मैं पी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर ये दोनों एलील सेम हैं, ए पी पी वाले, तो अफेक्टेड होगा। अगर एक ये है और एक ये वाला है, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज कैरियर। और अगर दोनों ये होते तो नॉर्मल। सेम फंडा रहेगा जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया में किया था हमने। सो इस डिजीज के अंदर क्या होगा? देयर इज ए अमाइनो एसिड नेम्ड फिनाइल एलानिन, ठीक है। दिस इज एन अमाइनो एसिड, ए शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, अमाइनो एसिड। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम है, सेम नाम लिखना है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज। तो इस एंजाइम ने करना था इसको कन्वर्ट टायरोसिन में, ठीक है। सो टायरोसिन क्या है? ये भी एक अमाइनो एसिड है, इन लीवर के अंदर जाके स्टोर होता है, ठीक है। लीवर के अंदर जाके कन्वर्जन होगा ये। तो ये जो एंजाइम था, इसने इस टॉक्सिक फिनाइल एलेनिन को, चलो अभी तो टॉक्सिक नहीं बोलते, फिनाइल एलेनिन को इसने टायरोसिन में कन्वर्ट करना था इस एंजाइम ने। पर इस एंजाइम को जो जीन बनाता है, म्यूटेशन इन जीन, मतलब जिस जीन ने इस एंजाइम को बनाना था उसके अंदर आ गई म्यूटेशन। अब म्यूटेशन आ गई तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, मतलब हमने यहाँ पे लगा दिया क्रॉस। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम,
फिनाइल एलेनिन विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, कन्वर्ट होगा ही नहीं। नाउ दिस फिनाइल एलेनिन विल कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड। दिस इज टॉक्सिक and start accumulated in brain and cause mental retardation। और अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो गया तो इट कैन स्टार्ट अपीयर इन यूरिन, ठीक है। सो इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जो एंजाइम चाहिए था इसको कन्वर्ट करने के लिए उसी के जीन के अंदर म्यूटेशन होगी, तो एंजाइम बना नहीं, एंजाइम नहीं बना तो कन्वर्जन नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया और ब्रेन के अंदर स्टोर हो गया, तो वहाँ पे जाके इसने टॉक्सिसिटी क्रिएट की और मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया। Now, next disease is thalassemia. Oh. THALASSEMIA। सेम चीज हमने सेम फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव disorder। सो रिसेसिव है तो एक्सप्रेस कब होगा, जब डबल होमोजाइगस कंडीशन होगी एलील्स की, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया ए एक टी, अगर ये वाली कंडीशन है टी फॉर थैलेसीमिया, तो ये हो गया आपका अफेक्टेड पर्सन, ए टी और नॉर्मल ए रह गया तो कैरियर, ए और ए रह गया तो नॉर्मल। सो अगेन फिर से बता रहा हूँ, कैरियर क्या चीज़ है, कैरियर एक ऐसा पर्सन होगा जिसके अंदर किसी डिजीज़ के सिम्टम दिखाई नहीं देते, पर उसके अंदर एक ऐसा एलील है जो आगे फ्यूचर में जाके ये डिजीज़ कोज करवा सकता है, ठीक है। सो थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी दो टाइप का थैलेसीमिया टू टाइप्स, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में नाम से पता चल रहा है म्यूटेशन इन अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने पहले बताया था हीमोग्लोबिन में टोटल 4 चेन होती हैं, 2 अल्फ़ा की 2 बीटा की। अगर यहाँ पे अल्फ़ा चेन में हो रहा है थैलेसीमिया में तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, और अगर म्यूटेशन इन बीटा चेन में होता है तो आपका बीटा थैलेसीमिया। तो इसके लिए जो जीन्स प्रेजेंट हैं, जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा थैलेसीमिया इज HbA1 एंड HbA2 प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। ये ऐसे लिख रहा हूँ मैं, CH फॉर क्रोमोसोम, नंबर के लिए मैं ये वाला साइन देता हूँ, क्रोमोसोम नंबर 16।
while for beta the gene is HBB and it is present on chromosome number 11. सो इन जीन्स के अंदर कोई चेंज आता है तो वो प्रॉपर अल्फ़ा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, तो उसकी वजह से अल्फ़ा थैलेसीमिया होगा। इस जीन के अंदर कोई चेंज आता है विच इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, तो उसकी बीटा चेन नहीं बनेगी, बीटा चेन नहीं बनेगी तो उसको हो गया बीटा थैलेसीमिया। डिमार्केशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कैसे नोटिफाई करेंगे हम इसको। सो दिस वाज ऑल अबाउट autosomal Mendelian disorder. Now we will move to sex linked. So sex linked में फर्स्ट हमारा क्या था, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है ब्लीडर्स मतलब ये वो पेशेंट हैं जिसके अंदर अगर एक बार कट लग गया तो जो ब्लड क्लोटिंग टाइम जो होता है हमारे अंदर, जैसे मान लो मुझे कट लगा, विद इन 1 मिनट और 1.5 मिनट्स ऑलमोस्ट ब्लड क्लॉट हो जाता है, आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। बट इन द पर्सन विच इज़ सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया और वी कैन से हीमोफिलिक पर्सन, दोज पर्सन आर अनेबल टू क्लॉट देयर ब्लड उनका क्लॉट नहीं होता, टाइम ज़्यादा लगता है, क्लॉट होता है पर टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज़। तो कट लगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से ही उसकी डेथ हो सकती है, इसलिए ब्लीडर्स डिजीज़। सो इन हीमोफीलिया क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग करवाने के लिए हमारे पास एक पूरा का पूरा कैस्केड होता है, कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स। कैस्केड मतलब कि हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है वो मान लो 10 स्टेप के अंदर हो रही है, तो जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर इस सबस्ट्रेट को चेंज करता है प्रोडक्ट में एक एंजाइम, ये वाला। तो अगर ये वाला एंजाइम जो है वो ना बने तो इसके अगले वाला स्टेप रुक जाएगा, उससे अगले वाला स्टेप रुक जाएगा, ऐसे कैस्केड इंटरडिपेंडेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैस्केड ऑफ प्रोटीन जो है स्पेसिफिकली देयर आर 2 प्रोटीन्स और एंजाइम्स विच आर नेम्ड एज क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 एंड फैक्टर 9। इसकी वजह से हीमोफीलिया ए होता है और इसकी वजह से हीमोफीलिया बी, या फिर इसका एक दूसरा नाम और भी है क्रिसमस डिजीज़। सो कई बार आपको नीट में ये पूछा जाता है कि भाई कौन सा फैक्टर है वो, 8 एंड 9, और कई बार नाम ये लेके पूछा जाएगा हीमोफीलिया। अगर हीमोफीलिया ए लिखा है तो फैक्टर 8 की बात कर रहा है, क्रिसमस डिजीज़ की बात कर रहा है तो दैट पेशेंट इज लैक ऑफ फैक्टर नंबर 9 दैट इज हीमोफीलिया बी। सो दीज आर क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये फैक्टर नहीं बनते उसके अंदर। सो ये नहीं बनेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं। तो हीमोफीलिया के अंदर क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये दोनों फैक्टर जो हैं, नो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन देयर रिस्पेक्टिव जीन्स। तो इनके देखो
कोई भी प्रोटीन जब हम बात करते हैं, चाहे वो प्रोटीन है चाहे एंजाइम है, वो किसी न किसी जीन से ही बना है। हम कह रहे हैं कि उसके जीन के अंदर ही म्यूटेशन होगी तो ये बनेंगे नहीं, ये नहीं बनेंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, द पर्सन इट कैन बी फैटल, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग होने से जो पेशेंट है आपका पर्सन है उसकी डेथ हो जाएगी। सो हीमोफीलिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे। पहली बात तो ये कि हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो जैसे मैंने बताया कि डोमिनेंट डिसऑर्डर आपका कोई नहीं है सिलेबस में, सिर्फ आपका रिसेसिव डिसऑर्डर्स ही हैं। अब सेक्स लिंक्ड है तो हमने मोस्टली सेक्स लिंक कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो हम एक्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि अगर मान लो हमने लिख दिया एक्स एच, तो मतलब 2 हीमोफिलिक एलील हो गए, तो ये पर्सन क्या होगा, दिस विल बी हीमोफिलिक। अगर ये कंडीशन है तो कैरियर, और अगर ये कंडीशन है तो नॉर्मल। सो क्वीन विक्टोरिया जो थी, इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया, शी वाज ए कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। तो उसकी जो पूरी जनरेशन है उसके अंदर ये जीन है ऑलरेडी प्रेजेंट, क्वीन विक्टोरिया। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं इनको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है तो वो करवा भी सकते थे, बट जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर डिसऑर्डर्स विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। तो हीमोफिलिक कब होगा, जब दोनों रिसेसिव कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। कैरियर अगर एक एलील है, नॉर्मल अगर दोनों एलील हीमोफिलिक नहीं है तो ये कंडीशन होगी। तो इससे रिलेटेड आप वो कर सकते हो, कुछ हेल्प बुक जो आपकी हैं उसमें से आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना ऑन द बेसिस ऑफ हीमोफीलिया। जैसे मान लो मैं खुद ही एक जनरल सा बनाता हूँ कि हमने बोल दिया एक पर्सन नॉर्मल है, फादर मैरिज विद ए नॉर्मल लेडी, ठीक है। तो इनसे जब यहाँ पे इनका जो बच्चा होगा एक, हम कह रहे हैं कि वो अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल। तो क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ गया कि भाई एक नॉर्मल मेल था, एक नॉर्मल फीमेल थी, जब उनकी शादी हुई तो उनसे एक बच्चा जो पैदा हुआ वो मेल बॉय जो है वो अफेक्टेड है। तो वो अफेक्टेड होगा कैसे, उसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनती है। अब जैसे मान लो फादर है, फादर के अंदर एक एक्स एक वाई होता है, पर हमने बोला है कि भाई जो जीन होता है वो प्रेजेंट होगा सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे। तो अगर फादर नॉर्मल है तो उसके ऊपर तो ये एच आ ही नहीं सकता। इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर एक बार भी एच आ गया तो दूसरा तो एक्स था ही नहीं, तो इस अकेले ने ही डिसाइड करना है कि हीमोफिलिक होगा कि नहीं होगा। तो एक बार भी अगर एच आ गया तो फादर हरदम डिजीज्ड होगा, इफेक्टेड होगा, हीमोफिलिक होगा। फादर कैन नॉट बी नॉर्मल और एक कैरियर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर फादर नॉर्मल की बजाय आप यहाँ पे हम करते हैं अफेक्टेड फादर, ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल लिखेंगे तो हमें एक्स नॉर्मल दिखाना पड़ेगा। मदर थी नॉर्मल, तो अगर वो हम कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर अगर हम बोल देते हैं नॉर्मल, अब यहाँ से हम केस बनाते हैं। उसने बोला कि भाई इसका एक दिस इज मेल और ये होगा हरदम अफेक्टेड। तो
क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? क्वेश्चन आ गया भाई, फादर जो था वो अफेक्टेड था, मदर जो थी वो नॉर्मल थी, उनका जो सन हुआ वो अफेक्टेड था, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? ये तभी होगी जब यहाँ पे फादर, मदर जो है, मदर हरदम अपना एक्स क्रोमोसोम देगी मेल को, और वाई कहाँ से आएगा? वाई फादर से आया, तो वाई आया यहाँ से और एक्स आया यहाँ से। तो ये वाली कंडीशन कब बनेगी? जब मदर कैरियर होगी, ठीक है, मतलब एच होगा यहाँ पे। बेशक से उसने बोला है क्वेश्चन में नॉर्मल, पर वो कैरियर होगी, उसको डिजीज़ तो नहीं है पर वो कैरियर जरूर है, इसलिए इसका एक एक्स एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए, तब जाके वाई तो फादर से ही आएगा हरदम, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस डिजीज से रिलेटेड, हीमोफीलिया से रिलेटेड। और नेक्स्ट एंड लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज, इसके अंदर एक पॉइंट और था, ठीक है, हो गया। नाउ जो सेकंड डिसऑर्डर, सेक्स लिंक डिसऑर्डर है दूसरा भी, टोटल पांचवा स्टार्ट हो गया ये। दिस इज कलर ब्लाइंडनेस। सो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होगा? पर्सन इज अनेबल टू डिफ्रेंशिएट between colors, specifically red and green। तो रेड और ग्रीन में तो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकता वो, उसको एक ही जैसा दिखाई देगा सब कुछ। सो ये इनबोर्न डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड है, मतलब इसका भी जो जीन प्रेजेंट है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे। तो अगर एक्स सी लिखेंगे तो अफेक्टेड पर्सन है, एक्स सी कैरियर, एक्स एक्स नॉर्मल। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या होगा? अगर एक बार भी सी आ गया तो वो अफेक्टेड हो गया। तो जितने भी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं मेल के अंदर, मेल आर मोर ससेप्टेबल ऑफ हैविंग सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बिकॉज दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। उसी ने डिसाइड करना है, अगर उसी के ऊपर आ गया वो एलील तो फिर वो डिसऑर्डर होना ही होना है मेल के अंदर। तो द पर्सन इज अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कलर्स, स्पेसिफिकली रेड एंड ग्रीन। तो जो ऐसे लोग होते हैं, आप लोग कभी अपना 12th के बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं वहाँ पे देखना, एक कलर ब्लाइंडनेस का आपका टेस्ट होता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई ए नंबर फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ऐसे ऐसे से कुछ गोल गोल से स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पे ये गोले गोले से बने होते हैं, रेड कलर में, ग्रीन कलर में, ऐसे करके उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। मान लो ये जेड वाला जो पैटर्न है, यहाँ पे आपके रेड गोले हैं और बाकी जगह पे आपके ग्रीन हैं। तो अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं हो तो आप इस पैटर्न को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस एरिया के अंदर ये रेड सर्कल्स थे, बाकी में सारे ग्रीन हैं। पर अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दिस टाइप ऑफ पैटर्न। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, मिलिट्री की बेल्ट जॉब्स जो होती हैं वगैरह, तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा और उसमें आप ये चीज़ धांधली नहीं कर सकते। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो है, वो पर्सन कभी ज्वाइन नहीं कर सकता उसमें मिलिट्री वगैरह में। और इसको हम ऐसा भी नहीं है कि भाई 2-3 साल का टाइम दे दें बस ठीक हो जाएगा पर्सन, ये ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। ये जो आपकी पूरी उम्र है उसके साथ ही रहेगी डिजीज़। सो कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कब होगा? जब
होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, पर्सन इज अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं एक 166। क्वेश्चन है आपका, ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमन। मतलब एक फादर है, मैन, वुमन। अब मैन है तो एक्स वाई होगा, ये एक्स एक्स होगा। अब क्वेश्चन है, एक कलर ब्लाइंड मैन। अगर कलर ब्लाइंड हमें बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के ऊपर सी लगाना ही पड़ेगा, दूसरा तो वाई है, इसलिए ये कलर ब्लाइंडनेस होगी। वुमन, वुमन का बोला है इसने विद नॉर्मल विजन, वुमन थी नॉर्मल, बट इसका जो फादर था वाज कलर ब्लाइंड। मतलब इसका फादर जो था वो एक्स वाई था और वो ये था एक्स वाई सी, ये वाली कंडीशन, ठीक है। वर्कआउट ए क्रॉस टू शो द जीनोटाइप ऑफ द कपल एंड देयर रिस्पेक्टिव सन। अब ये कह रहा है कि भाई इन दोनों का जीनोटाइप हमें बताओ। इसका तो हमें बता दिया कि एक्स के ऊपर सी, ये तो कलर ब्लाइंडनेस हो गई। हम इसको कह रहे हैं ये नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल जो है उसका फादर कलर ब्लाइंडनेस था, तो फादर हरदम फीमेल के लिए क्या देता है, अपना एक्स क्रोमोसोम देगा। तो इसका एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे आया तो पक्का है कि कैरियर होगी है, क्योंकि कैरियर भी तो नॉर्मल है, दिखने में तो नॉर्मल है वो, पर कैरियर है। तो अब यहाँ से जो जीनोटाइप बना इसके हम कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन XC फीमेल है, कलर ब्लाइंड, C भी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सेकेंड कॉम्बिनेशन XC विद X, दिस इज अगेन फीमेल, कैरियर। तीसरा कॉम्बिनेशन XC विद Y, ये एक मेल होगा एंड दिस मेल इज कलर ब्लाइंड, क्योंकि इसमें दूसरा X तो है ही नहीं, Y क्रोमोसोम आ गया। एंड फोर्थ ऑप्शन इज XY, दिस इज मेल एंड दिस इज नॉर्मल। तो अब क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि भाई इस कंडीशन वाले की जो आपके फादर और मदर थे, तो यहाँ से जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन बनी उसके अंदर मेल बताओ कैसे थे। तो मेल हम बताएंगे कि 50% मेल जो थे वो कलर ब्लाइंड थे और 50% मेल जो थे वो नॉर्मल थे। वाइल इन केस ऑफ फीमेल वी विल से 50% वाज नॉर्मल, नहीं 50% वाज कलर ब्लाइंड एंड 50% वाज नॉर्मल बट कैरियर, ठीक है। तो इस टाइप के आपने कॉम्बिनेशन बना के देखने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप करके देखो। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा आज के लेक्चर से। तो ये आपके थे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसके बाद हम करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।